Hello students, now I am present with lesson 3 of general properties of nucleus. तो lesson 3 ਦੇ अंडर बेटा फर्स्ट टॉपिक है ਤੁਹਾਡਾ न्यूक्लियर फोर्सिस। देखो न्यूक्लियर फोर्सिस की ने ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। प्रोटॉन्स आर सिमिलर पार्टिकल्स, सिमिलर नेचर दे पॉजिटिव पार्टिकल्स ने, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स ने। तो हुण देखो जिहड़े ये चार्ज पार्टिकल्स ने या न्यूट्रल पार्टिकल्स ने ये बहुत स्मॉल डायमेंशनस च पए ने। स्मॉल तुहानूं पता है बेटा साइज़ है जिहड़ा न्यूक्लियस दा दैट इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻15 मीटर। तो उस स्मॉल डायमेंशन च जदों ये चार्ज पार्टिकल्स पए ने ਤਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫੋਰਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, क्योंकि प्रोटॉन सेम नेचर दे ने बेटा, सेम नेचर दे चार्ज एक दूजे नूं रिपैल करते हैं अगर असी कूलम्स ला दा सिस्टम यूज़ करते हैं, कूलम्स ला अप्लाई करते हैं। उस तो इलावा ये कहा जाता सी कि ग्रैविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सिस लगदियां ने ड्यू टू मासिस ऑफ प्रोटॉन्स। देखो बेटा जिहड़ियां ये दो फोर्सिस लग रही ने ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਾਉਂਡ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੂਲਮ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਰਿਪਲਸਿਵ ਡਿਊ ਟੂ ਸੇਮ ਨੇਚਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਅਗਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰਿਪਲਸਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਮ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ comparatively to gravitational force. When calculated, Coulomb repulsive force is much greater than gravitational force. Actually, Coulomb repulsive force is 10⁻36 times the gravitational attractive force. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Coulomb force ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। That's why ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਤੇ Coulomb ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਕਮ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ दैट मीनस कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए है। दैट्स वाई जिहड़ियां न्यूक्लीयर फोर्सिस हुंदियां ने इन्हां दा मैगनीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हुंदा है कंपैरेटिवली टू अदर फोर्सिस। नैक्सट है बेटा काज ऑफ न्यूक्लीयर फोर्स और मैजॉन थ्योरी। मैजॉन थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक नवे पार्टिकल्स तुसीं पढ़ोगे दैट आर मैजॉन्स। देखो ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਨਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨਸ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਬਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ मतलब जस्टिफाई करन दे लई कहा जाता है। वो सिमिलरली युकावा साइंटिस्ट सीगे युकावा, इन्हां ने न्यूक्लीयर फोर्सिस दे लई की कहा
कि जिस तरह प्रोटॉन च फोर्सिस लग रही ने क्योंकि सेम नेचर के पार्टिकल्स ने उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्सिस जिहड़ियां लग रही ने दैट इज़ ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मेजॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस च एक पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं जिन्होंने उन्होंने नाम दिता मेजॉन्स का। तो ये मेजॉन्स ने जिहड़े ये 3 तरह के एग्जिस्ट करते हैं प्लस माइनस एंड न्यूट्रॉन। हुण ये थ्योरी दे बेटा मेन पॉइंट्स की ने देखो थ्योरी दे मेन पॉइंट्स ये ने कहंदे कि न्यूक्लियॉन्स ने जिहड़े इन्हां दा एक कॉमन कोर हुंदा है कॉमन कोर सराउंडिड बाय क्लाउड ऑफ मेजॉन्स जिस तरह न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन है तो इन्हां दे आले दुआले एक इन्हां दे सराउंडिंग एक क्लाउड है। ये क्लाउड काहदा है ये क्लाउड मेजॉन्स दा क्लाउड है। हुण एक न्यूट्रॉन ते प्रोटॉन दे जिहड़े क्लाउड्स ने इन्हां दी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है मतलब घट बद मेजॉन्स इन्हां च हो सकते हैं या पाई प्लस या पाई माइनस एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो मेजॉन क्लाउड जिहड़ा है ये कॉन्टीन्यूसली एक दूजे दे नाल ये पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं। देखो बेटा एरो कॉन्टीन्यूसली एक दूजे दे नाल ये मेजॉन एक्सचेंज करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सपोज टू बी इन द कॉम्पोजिशन ऑफ देयर रिस्पैक्टिव मेजॉन क्लाउड मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन वही जिहड़ा पॉइंट मैं तुहानूं पहला दस के चुकी हाँ कि इन्हां दे मेजॉन क्लाउड की कॉम्पोजिशन एक दूजे तो डिफरेंट हो सकती है। उस तो इलावा जिहड़े मेजॉन्स ने ये बहुत शॉर्ट पीरीयड के लिए फ्री रहंदे ने ते अनडिटेक्टेबल ने मतलब ये वर्चुअल ने इन्हां दे लिए असीं नाम की यूज़ करते हैं वर्चुअल मेजॉन्स। वर्चुअल मतलब कि जिहड़े बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस हुंदे ने और बहुत शॉर्ट टाइम दे विच इन्हां दी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है दैट्स वाई असीं इन्हां नूं नहीं डिटेक्ट कर सकते। ये थ्योरी दा पार्ट है जस्टिफाई करन दे लई। उस तो बाद फास्ट एक्सचेंज ऑफ दीज मेजॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स चेंज द न्यूक्लियन आइडेंटिटी इक्वली फास्ट एंड बाइंड दैम टुगैदर मतलब फास्ट एक्सचेंज जो इन्नी फास्ट एक्सचेंज होंगे पार्टिकल्स तो कहते न्यूक्लियॉन्स की आइडेंटिटी चेंज होंदी है। हुण देखो आइडेंटिटी किस तरह चेंज होंदी है आइडेंटिटी जो चेंज होंदी है तो जिस तरह न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्ट होंगे हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग पाई नैगेटिव मेजॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो सकते हैं वैन न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब पाई प्लस मेजॉन प्रोटॉन विद पाई न्यूट्रॉन पाई न्यूट्रल। सो क्लीयर है बेटा दे 6 पॉइंट्स ने इस मेजॉन थ्योरी दे। मेजॉन थ्योरी तो बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लीयर फोर्सिस दियां प्रॉपर्टीज़ की ने तुहानूं पहलां भी दस चुकी हैं बेटा मैं दीज फोर्सिस आर स्ट्रोंगेस्ट इन नेचर स्ट्रोंगेस्ट फोर्सिस ने बिकॉज ये सेम नेचर के पार्टिकल्स नूं बाउंड करके रखदियां ने आपस च ते इन्हां दा मैगनीट्यूड 10⁻38 टाइम है ग्रेविटेशनल फोर्सिस का 10⁻2 टाइम्स है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस का। उस तो इलावा शॉर्ट रेंज फोर्सिस ने शॉर्ट रेंज का मतलब है कि ये विद इन स्मॉल डायमेंशनस वर्क करदियां ने न्यूक्लीयस दे आउटसाइड न्यूक्लीयर फोर्सिस नहीं एग्जिस्ट करदियां तो न्यूक्लीयस दे अपने डायमेंशनस ने जिहड़े इटसैल्फ वो बहुत घट है साइज़ ही सारा वह ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर है तो ये शॉर्ट रेंज दे विच एक्ट करदियां ने तो उहदे लई बेटा तुहाडे बुक दे विच देखो एक ग्राफ दिता होया है एक्स एक्सिस ते आपां लै रहे हैं डिस्टेंस इन फर्मी वाई एक्सिस ते पॉजिटिव साइड रिपल्शन नैगेटिव साइड अट्रैक्शन। तो ये ग्राफ देखो की शो करता है ग्राफ दी नेचर की शो करती है इस रीजन च 0.5 तो लैके नियर अबाउट 2 फर्मी तक इन्हां च अट्रैक्टिव फोर्सिस लगदियां ने 0.5 फर्मी तो अगर असी ज़्यादा नज़दीक आने नज़दीक मतलब कि प्रोटॉन दे बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया या न्यूट्रॉन दे बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया तो वो चीज़ पॉसीबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स भी एक लिमिट तो बाद एक दूजे दे क्लोज नहीं आ सकते। तो 0.5 तो बिलो जिहड़ा है उन्हां च फिर की होएगी
ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਫਾਰਮ ਬੌਂਡਸ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਟਸ ਨੇਬਰਸ। ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20 ਦੇ 20 ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਨੇਬਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਚ ਸੇਮ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਸਪਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਸਪਿਨ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਿਨ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪੈਰਲਰ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਹੈਵਿੰਗ ਪੈਰਲਰ ਸਪਿਨ ਹੈਵ ਮੋਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਰ ਸਪਿਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਪੈरेटिवली ਟੂ ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਹੈਵਿੰਗ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ ਸਪਿਨ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਨॉन ਸੈਂਟਰਲ। ਨॉन ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇਚਰ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਈ ਮੈਜ਼ੋਨਸ। नेक्स्ट आर्टिकल है मास डिफेक्ट। देखो मास डिफेक्ट की है। मास डिफेक्ट की है न्यूक्लियस दी जदों फॉर्मेशन हुंदी है या असी कहिए कि असी न्यूक्लियस दा मास देखना है, तो न्यूक्लियस दा मास की होना चाहिए? न्यूक्लियस दा मास होना चाहिए जिन्ने नंबर ऑफ उहदे च न्यूट्रॉन ने, जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ने, उन्हां दोनों दे मास का सम होना चाहिए। दोबारा दस रही बेटा मैं, न्यूक्लियस का मास की होना चाहिए? न्यूक्लियस का मास होना चाहिए भी जिन्ने उहदे विच न्यूट्रॉन पए ने उन्हां दा मास, जिन्ने उहदे च प्रोटॉन्स पए ने उन्हां दा मास, उन्हां दा सम होना चाहिए। पर एक्चुअली दे विच न्यूक्लियस का जिहड़ा मास हुंदा है ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸ ਹੈ, ਮਾਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ MP ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, MN ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ, ਤੇ M ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। कैपिटल N की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ने, Z की है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ने, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किन्ने हुंदे ने जिन्ना एटॉमिक नंबर हुंदा है। A की है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मास डिफेक्ट असी किस तरह कैलकुलेट करांगे? मास डिफेक्ट होगा टोटल सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो पार्टिकल्स का मास की होगा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪਏ ਨੇ।
प्रोटॉन्स किन्ने ने Z पए ने। न्यूट्रॉन्स किन्ने हो गए जिन्ना दा मास नंबर है माइनस एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट की है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट करन वाले पार्टिकल्स दे मास दे सम चों असी माइनस करना है एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने बेटा ये, अगले जिन्ने भी टॉपिक ने 2-3 रह गए इस चैप्टर दे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट ने। नेक्स्ट टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन की है डेविएशन ऑफ द एटॉमिक मास फ्रॉम होल नंबर is expressed in the form of quantity called packing fraction। देखो ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਸੌਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? पैकिंग फ्रैक्शन है m माइनस ए अपॉन ए। m की है एक्चुअल मास ऑफ द एटम और a की है मास नंबर है। तो m माइनस a जिहड़ा है इनू असी डेल्टा m भी लिख सकते हैं। m इज़ द एक्चुअल एटॉमिक मास माइनस मास नंबर इज़ इक्वल टू ये मास डिफेक्ट के बराबर है बेटा, हुणे असी पढ़ के चुके हैं दिस वन। तो पैकिंग फ्रैक्शन को असी की लिख सकते हैं डेल्टा m अपॉन ए। पैकिंग फ्रैक्शन की कर्व है बेटा एक दिस एक्स एक्सिस ते है मास नंबर, वाई एक्सिस ते है पैकिंग फ्रैक्शन। मास नंबर वेरी कर रहे हैं 20, 40, 60, 80, 100 एंड अप टू 200। इधर है पैकिंग फ्रैक्शन, देखो नेगेटिव वैल्यू भी है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। ठीक है जी। हुण ये पैकिंग फ्रैक्शन कर्व नूं जे तुसीं ध्यान दे नाल देखो, ये पैकिंग फ्रैक्शन दी कर्व अपनी हाईएस्ट वैल्यू तो शुरू हो के 0 ते आई, उस तो बाद इहदी वैल्यू नैगेटिव हो गई, नैगेटिव होने तो बाद ये वैल्यू फिर अप कर गई। तो पैकिंग फ्रैक्शन की जी कर्व है असीं कुछ पॉइंट्स के नाल एक्सप्लेन करांगे। पर पैकिंग फ्रैक्शन नूं पढ़न की यूटिलाइजेशन की है? एक्चुअली पैकिंग फ्रैक्शन स्टेबिलिटी मेजर करता है। पैकिंग फ्रैक्शन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी मेजर करता है। जिन्नी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी उन्नी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी घट होगी। जिन्नी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी उन्नी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी घट होगी। क्लीयर है? हुण अगर असी डायग्राम च देखिए, देखो 20 मास नंबर है, उस तो पहला ये सारे की ने, ये सारे लाइट न्यूक्लियाई ने। तो लाइट न्यूक्लियाई दे लई पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम है एंड हैंस अनस्टेबल। तो लाइट न्यूक्लियाई ने जिहड़े बट हीलियम कार्बन ऑक्सीजन नू छोड़ के, क्योंकि ये एक्सैप्शनल केस ने बेटा हीलियम कार्बन ऑक्सीजन इन्हां च ईवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स पे ने। असी फर्दर चैप्टर्स दे विच पढ़ांगे भी ये स्टेबल क्यों ने। बट इन्हां दे नेबर्स जिहड़े लाइट पार्टिकल्स ने इन्हां दे अगे पिछे ने, उन्हां दे लई पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। देखो इन्हां दे लई पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, तो इन्हां दी स्टेबिलिटी जिहड़ी है वो घट है। बियॉन्ड ए इज़ इक्वल टू 16 विद इनक्रीज ऑफ मास नंबर वैल्यू ऑफ एफ डिक्रीज। मास नंबर 16 तो बाद देखो 16 ऑक्सीजन ते आके ये 0 हो गया, उस तो बाद ये वैल्यू डाउन जानी शुरू होगी, नैगेटिव जानी शुरू होगी। न्यूक्लियाई ऑफ मिडल रेंज आर स्टेबल। मिडल रेंज वाले जिहड़े न्यूक्लियाई ने उन्हां दी वैल्यू नैगेटिव है।
ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ज़्यादा है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी घट है, अगर पैकिंग फ्रैक्शन घट है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। हुण क्योंकि इस रेंज दे विच वैल्यू नैगेटिव आ गई, दैट मीनस कि आ जिहड़ी रेंज है, आ मास नंबर की जिहड़ी रेंज है, इस जिहड़े पार्टिकल्स आंदे ने दे आर हाईली स्टेबल। वैल्यू ऑफ एस बिकम्स 0 एट ए ग्रेटर दैन 240 एंड हैंस हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। तो एफ की जी वैल्यू है वो 0 ते आ जाती है द्वारा फॉर ए ग्रेटर दैन 240 तो बाद जो मास नंबर जाता है तो ये वैल्यू द्वारा 0 ते आ जाती है। मतलब कि असी कहने वैल्यू अप होना शुरू हो गई, एफ की वैल्यू इनक्रीज होनी शुरू हो गई। दैट मीनस कि जेडे फरदर हैवी एलीमेंट्स ने वो फिर की हो जाते हैं, अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। सो इत्थे टॉपिक खत्म है बेटा। थैंक्स।